میں اس کے لیے السلام علیکم. صدر محترم سے اجازت ہے چند باتیں میں پیش کرنے کا. انتخاب جدید سے قبل میری ایک بات ہے آپ لوگوں سے کہ میں مولانا ہاشم صاحب سلفی اور ابھی جیسا انہوں نے کہا کہ ابھی کوئی کسی کا عہدہ نہیں ہے, اب جو آپ چنیں گے انتخاب ان کا وہی ناظم وہی سیکریٹری کہلائیں گے. اس کی روشنی میں سابق ناظم ہاشم سلفی حفظ اللہ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی آج کی انتخابی جدید کی جو میٹنگ طلب کی ہے آپ نے, کیا یہ دستور کے آئین کے مطابق آپ نے کی ہے؟ جواب. آج کی یہ میٹنگ قوم مشکلہ بینون کے تحت ساری مقامی ذمہ داروں کو بلایا گیا ہے اور ان کے رائے مشورے سے انتخاب عمل میں آ رہا ہے. اگر کوئی دستوری کمی پیشی ہو تو آپ کو کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں, دستور کے مطابق آپ بلائے ہیں, آپ کہیے ہاں یا نہیں. جب آپ کہہ دیں گے ہاں تو ہم نے کہا پھر سوال آپ کو جواب دینا ہے. کہا دستور کے مطابق میں نے یہ مجلس طلب کی ہے. وہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں کوئی خلل ہو تو آپ جی آصف صاحب لوگ نے یہاں پہ بیان کیے تھے کہ صدر کی جو ہے انتخاب سے مولانا ثناء اللہ صاحب کی جگہ پر کسی کو محض نہیں ہے. یہ بات نہیں کہتی ہی بات ہے. کیا کہتے ہیں مولانا نے دیکھیے شاید سوچا ہے کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن, منتشر ہو تو مر و شور مچاتے کیوں ہیں. ہم لوگ کس بات کا گلا شکوہ رونا روئیں. ہم لوگ کفار سے لڑیں, دوسرے مسالک والوں سے لڑیں یا آپس میں لڑیں, ساری چیزوں کو ختم کر کے متحد ہونے کے حالات ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے اور حالات کے تقاضے ہیں کہ ہم لوگ متحد ہو جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی جو یہ بیٹھک ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا منشور کیا یہ میں نہیں جانتا, اور صبح کا بھی کیا منشور انتخاب ہو اس کو بھی میں نہیں جانتا. حتیٰ کہ میں ضلع کا انتخاب کا جو منشور ہے تھا یا ہے آئین یا اس کا دستور کیا ہے اس کو بھی میں نہیں جانتا. ایک روز میں اور مولانا ہاشم اللہ کی یہ گھر ہے, اس کی یہ مسجد ہے, اس میں جو بھی میں بولوں گا انشاءاللہ صحیح بولوں گا, جھوٹ سے بالکل پرے رہوں گا انشاءاللہ. میں اور مولانا ہاشم صاحب آئے کہ اس انتخاب کو کرا لینا ہے اس سے پہلے اور اس کا پس منظر کچھ اور تھا. انہوں نے اس بات کو نہیں کہا کہ ہونا یہ چاہیے کسی کے اندر خوبی ہے اس کو بھی اجاگر کرنا چاہیے اور کسی کے اندر خرابی ہے اس کو بھی اجاگر کرنا چاہیے. ون سائڈ کسی بھی آدمی کو نہیں چلنا چاہیے اور نہیں بولنا چاہیے. ون سائڈ چلنے سے کیا ہوتا ہے کہ بیلنس بگڑتا اور گاڑی ایکسیڈنٹ کر جاتی ہے. مولانا نے رضوان ریاضی صاحب پر اللہ گواہ ہے کہ میں کسی کا پخات میں یا کچھ بنائی میں یا حمایت میں نہیں بولتا ہوں. یہ میری خاص صفت پہلی. جی انہوں نے یہ کہا کیا کہ انہوں نے تمام علماء کو ذمہ داران علماء کو گالی دیا, بدترین بھدائیں یہ کیا وہ کیا, لیکن ان کی جو خصوصیات تھیں ان کو بھی ان کو ذکر کرنا چاہیے کہ ذیلی جمعیت کے تعلق سے جب بھی ہم نے آواز لگائی انہوں نے اس طرح تعامل کیا اور اس طرح انہوں نے حصہ دیا. ابھی ان کو 10,000 روپیہ ذیلی جمعیت کی کو دیا. نہیں کہا گیا, نہیں اعتراض نہیں کیجیے, میری بات نہیں کہا گیا, نہیں کہا گیا. نہیں کہا گیا. ہم نے اس میں ویڈیو میں ہو سکتا ہے. اسی پہ بات کر رہا ہوں, میں اسی میں وہیں جا رہا ہوں. چلیے میں کہہ رہے کوئی چلا جائے, میں کہہ رہے کوئی چلا جائے.
मैं डायरेक्ट वहीं चला जाता हूँ। दूसरी बात मैं सारी चीज़ों बलात्कार कर मैं डायरेक्ट नहीं पहुँचा। मैं और मौलवी हाशिम साहब आए कि जिस तारीख में हम लोग इंतखाब कराना चाहते हैं जदीद, हाँ तो मौलाना ने मोहम्मद अली साहब ने हम लोगों को कहा कि आप लोगों को कोई अथॉरिटी किसने दी है, इसका उसूल ये है, इसका दस्तूर ये है, इसका आइन ये है, इसका मंशूर ये है कि तमाम इकाई जो हैं इकाइयाँ जिला में जमियात की मजलिस शूरा की बैठक कराइए और मजलिस शूरा ये तय करी किस तारीख में किस मकाम पे जिला का इंतखाब होगा। तो क्या ये जो बात कही गई सही है कि गलत? शायद पहले आओ क्या वो मीटिंग हुई या नहीं, अगर नहीं हुई है तो फिर इंतखाब कैसा? सबसे पहले ये बयान किया कि मैं दस्तूर क्या है मरकज़ का वो भी नहीं जानता हूँ, सूबे का दस्तूर क्या है वो भी नहीं जानता हूँ, ज़िले का दस्तूर क्या है वो भी नहीं जानता हूँ। और उसी को शाहिद कर रहे थे कि इन दस्तूरों को कुछ नहीं जानता। ये लोग आए थे और ये दोनों आदमी ये मेरे पास बैठे और कहे कि आप किसको नाज़िम बनाना चाहें, यहीं पे आप डिसाइड कर लीजिए किसको बनाना चाहें। हाशिम साहब यहाँ मौजूद है, हम लोग तीनों आदमी यहाँ मौजूद हैं, हम लोग तीनों आदमी मौजूद हैं, आप यहाँ पहले इसको ये कर लीजिए किसको बनाया जाए। हमने कहा कि और वो जिला में है वो क्या करने आएंगे, आप हम ये मिल करके किसी को यहाँ डिसाइड कर लेंगे और फिर आज आप कैसे कर रहे हैं जबकि अभी आपकी बहुत सारी जमीयतों की मकामी यूनिटों की तश्कील बाकी है। पहले उन यूनिट की तश्कील कीजिए। और उसमें सबसे बड़ी बात जो ये थी कि मेरे यूनिट की खुद मैं जो सूबे का नाज़िम हूँ, मेरे यूनिट की तश्कील में मुझे मालूम नहीं है कि अभी कौन कौन लोग हैं। इनसे मांग रहा हूँ कि मुझे वो सारी तफसीलात दीजिए ताकि मैं अपनी बैठक कर लूँ और बैठक करके उसमें से किस तरीके से उसमें शिरकत करना है, क्या कुछ करना है, वो तक मुझे मालूम नहीं था उस वक्त। तो मैंने इसके ऊपर प्रयास किया कि और यूनिटों का हाल क्या होगा, जब हमारी यूनिट का ये हाल है तो दूसरी यूनिटों का क्या हाल होगा। इसलिए मैंने कहा कि पहले सबको ये कर लीजिए और उसके बाद आप शूरा का निशस्त बुला लीजिए। नहीं कहा था मैंने, आमिला की निशस्त बुला, आमिला की निशस्त बुला। और आमिला की निशस्त बुलाने के लिए सारे लोगों को बुलाना ज़रूरी नहीं होता है। अगर इस तरह का बिल्कुल ही कोई इमरजेंसी वक्त आ जाए, जैसे आज इमरजेंसी के वक्त है, क्यों? इसलिए कि 6 तारीख को हमारी सारी यूनिटें ज़रूरत हो जाएंगी और 6 तारीख से पहले पहले ये सब काम हम लोग कर लेना है। इसलिए बहुत ही उजलत में 6 तारीख को सूबाई निशस्त बुलाई गई, वहाँ इंतखाबी निशस्त। 6 तारीख के बाद फिर हमें, अगर हमने सूबे का निशस्त नहीं किया तो हमें मरकज़ी मजलिस शूरा मजलिस आमिला से इस बात की इजाज़त लेनी पड़ेगी कि हम 1 महीने की 2 महीने की आपसे और एक्सटेंशन चाहते हैं और उसके बाद ही हम जो है और आगे चल करके अपनी कार्रवाई को मुकम्मल कर सकते हैं। मेरे ऊपर मौलाना अमीरुल साहब, मेरे ऊपर कई जहत से दबाव आया, यानी उन्हीं लोगों के चंद लोगों, कई जहत नहीं 4-5 आदमियों की तरफ से दबाव आया कि रिजवान साहब को बना दीजिए, रिजवान साहब को बना दीजिए। मैंने बहुत सारे लोग, मैंने कहा कि मैं क्यों बना दूँ भाई, मैं कौन होता हूँ बनाने वाला, मैं कौन होता हूँ किसी एक को आगे बढ़ाने वाला। ये सारे लोग हैं जो आज बैठे हुए हैं, ये मालिक हैं और ये जिसको चाहेंगे बनाएंगे। ये अगर किसी को बना लेते हैं तो बन जाएगा और किसी को अगर कह देते हैं कि ये आज तक हमारे जो है हमारी कमेटी के सरबराह रहे, आज से नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे। ये मैंने कहा था और इन्होंने टेलीफोनिक रब्ता करके और लोगों से भी जिन जिन से हो सका। अभी इस एरिया में तो आप लोग जानते हैं कि कितने दिनों से तकरीबन 15-20 रोज से मोबाइल इस तरह डिस्टर्ब है कि मोबाइल पे कई घंटा बैठना पड़ता है, तब 1-2 आदमियों से रब्ता होता है। बहुत परेशानी के आलम में ये सारी बातें रखी गई हैं और सारी मीटिंगें हो रही हैं कि उनको और आगे बढ़ाया जाता। और इसमें मौलवी हाशिम साहब ने एक राय ये भी पेश की कि भाई ये भी बकरीद के मौके से सारे
हाजिर होते हैं और ज़्यादा लोगों की शिरकत की तवक्को होगी, लिहाजा इस मौके पर दिया जाए। मैंने कहा कि ठीक है, अगर आप सब लोगों को बुला सकते हो, तमाम लोगों तक पहुंच सकते हो, ये एजेंडा लेकर के और गांव-गांव दौड़े हैं, इधर रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं और भी मसाइल को दुरुस्त कर रहे हैं, और उसके बाद गांव-गांव दौड़ करके और जो है दस्तखत भी करा रहे हैं, और फिर भी उस आदमी के लिए आप लोग ये कर रहे हैं जो आदमी एजेंडा पर पढ़ करके फाड़ दे। ये कोई जो है बात है, दुनिया में किसी इसको भी मैं बयान करूँगा। दुनिया में किसी भी शख्स का ये नहीं है कि वो एजेंडा पढ़ के फाड़ दे, या ये कि सबको फाड़ दे। वो फाड़ा था खुशरू परवेज़ ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किसी को बद्दुआ, खास शख्स को बद्दुआ नहीं देते थे, उसको बद्दुआ दिया कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी सल्तनत को ऐसे ही फाड़ा कर देगा जैसे इसने मेरे इसको जो है मेरे ख़त को फाड़ा है। एक आदमी अगर किसी जमीयत के ख़त को फाड़ रहा है तो वो ख़त नहीं है, पूरी जमीयत है जिसको चाहिए। जहाँ तक मेरी सामना